Checking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. This is RJ Vortex on the radio for Duma's Lobby. I hope you guys ready for the music. We are ready to doing a show on Urdu Mazal Lobby's radio. Please standing by and wear your seatbelts. Little energy can be drained because of my sleeping, but I'm not be able to sleep because my shows are held on Urdu Mazal Lobby. So after the show and some work, I go back to the sleep, please. Please, if you guys feel sleep, then go to sleep. Don't waste your time on the other things. Ooh la la, welcome everyone in Urdu Mazal Lobby's radio. This is RJ Vortex. It's a final countdown. It's a final countdown. सबको करते हैं एक बार फिर से warm welcome in Urdu Mazal Lobby's radio as well as on the main chat. Thank you so much for joining us and staying here with your time. Welcome आप सबको, जो लोग हमें सुन रहे हैं उन सबको भी और जो लोग नहीं सुन रहे हैं उन सबको भी. We're living together, but still it's parallel, and maybe we'll come back to a... It's a final countdown. Who can tell? Whoa, whoa, whoa. People are pressing 1 on the main chat. It's looked like we are connecting on air and flying together in the sky. Just like a Mark 10. Let's turn and burn, babies. Just starting. Get ready to feel the electricity in your souls. Alright, अस्सलाम वालेकुम. This is RJ Vortex live from Urdu Mazal Lobby's radio. उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, फुल एनर्जेटिक होने के लिए रेडी होंगे, हमारे साथ सॉन्ग सुनने के लिए रेडी होंगे, हमारे साथ टॉपिक पे पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी होंगे, आपस में वेयर सीट बेल्ट आप लोगों ने बांध ली होगी, सीट बेल्ट, और साथ में आप लोग रेडी होंगे हमारे साथ एंजॉय करने के लिए, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करने के लिए, थोड़ा सा हल्ला गुल्ला करने के लिए, ओनली ऑन उर्दू मज़ल लॉबी. टॉक अबाउट द उर्दू मज़ल लॉबी. इफ आई एम टॉक अबाउट द उर्दू मज़ल लॉबी, then I must say, must appreciate it. They are highly lovable people here. I'm talking about the staff of Urdu Mazal Lobby. कुछ भी होता है ना लाइफ में, ये हमेशा मेरे पीछे खड़े हुए होते हैं. And I never ever seen this kind of room in my life that they supporting me every time. Even मैंने अपनी गलतियाँ कुछ मैं भी कर जाता हूँ. I'm not a perfect one, but sometimes I'm slip on the floor and they giving me the hand. वहाँ पे वो मुझे हाथ देते हैं और बोलते हैं कि भाई उठ जा यार, वापस आ जा, फ्रीक्वेंसी के लोग आए हुए हैं यहाँ पे. स्टैंडर्ड है थोड़ा UML का, एंड वी आर लाइक अ फैमिली. एंड वो जस्ट रियलाइज यार
They are good. They are better, and they're guiding me so well in every path of my life. The thing is, I just want to thank all of them, including Falcon, Richelle, Emily, Harry, Vasi, Silent Eyes. They are so cooperative people. They always support me, and so as the new arriving like Meaty and Samaria, and this guy, whom I can call a Charlie. Charlie means Jakal. He always giving me some energy, some entertainment, some kind of love which I am not found in this world. And बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आई नेवर सी अ रूम लाइक दिस. मतलब मैं कभी भी किसी रूम में जाता था, हम लोगों ने बहुत विजिट किया है. 18 ईयर ऑफ माई एक्सपीरियंस इन द चैट वर्ल्ड, एंड मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को देखा, लेकिन लोग अपनी में लगे होते हैं. देयर आर नथिंग फीलिंग लाइक अ फैमिली, एंड आई एम जस्ट शिवरिंग राइट नाउ बिकॉज those words and those feeling are coming from the heart, and straight to you, on your face, on your heart and your ears. Thank you so much for supporting every time, you guys. And if I did any kind of mistake, so I feel sorry about it, and say sorry to the guys who are like my family, या मेरी फैमिली जैसे. तो फड्डे शड्डे भी थोड़े बहुत फैमिली में हो जाते हैं यार, टेंशन नहीं है. अब जैसे फैल्कन यहाँ से चला गया थोड़ी देर के लिए, वापस जब आया तो वो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि ये फैल्कन है. एंड आई वाज जस्ट सो डैम मिसिंग दैट पर्सन, एंड पता नहीं वो कहाँ फंसा हुआ था बंदा. निकाल देते उसको, लेकिन इट्स ओके. द गुड थिंग इज ही इज़ बैक, एंड आई एम गुड टू सी हिम एंड द अदर पीपल हु आर सपोर्टिंग. जब तक वो नहीं थे तो बड़ा मिस किया उनको, एंड फाइनली बैक. मैं दुआ ही करता रहा कि भाई जहाँ रहे खैरियत से रहे, कुछ रहे. बट आई जस्ट वॉन्ट टू से थैंक्स टू द पीपल, द फैंस जो हमारा शो को सुनते हैं, उनका भी, और इस टीम का भी, और सपोर्टिव टीम का भी. बिकॉज टीम के बगैर उर्दू मज़ा लॉबी में हम काम नहीं कर सकते और आगे ग्रो नहीं कर सकते. कभी हमारे अप्स भी आए, कभी डाउन्स भी आए, एंड वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू प्रोवाइडिंग यू अ गुड इंटरफेस ऑफ द मेन चैट एज वेल एज RJs, DJs, entertainment एंड ऑल. बट ज़िंदगी में हमसे मिस्टेक्स होती हैं लाइफ में. उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि अगर हम उस मिस्टेक से सीखें ना, और बार बार उसको करते चले जाएं, तो वहाँ हमारा नुकसान शुरू हो जाता है. तो ऑलवेज डू अ मिस्टेक्स, बट लर्न फ्रॉम दैम. इफ़ यू स्टॉप लर्निंग फ्रॉम दैम, योर गेम इज़ ओवर. सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट उर्दू मज़ा लॉबी. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. वेलकम करते हैं आप सबको एक बार फिर से, एंड प्रोवाइड करते हैं आपको एंटरटेनमेंट विद द म्यूज़िक एंड ऑल द थिंग्स. कैप्टन अमेरिका आपको करेंगे वेलकम. थैंक यू सो मच एंड हेल्पिंग मी. ये जो बंदा है, इस बंदे ने ये हमारा ही इज़ वन ऑफ माई क्रेजी फैंस. मेरे पास माइक नहीं था एक टाइम पे, एंड आई वॉज अनेबल टू डू द शो ऑन उर्दू मज़ा लॉबी. हम सर्च कर रहे थे, एंड कैप्टन अमेरिका वॉज वन ऑफ देम, जिसने मुझे कहा लो बजट माइक पे इन्होंने मुझे माइक सर्च करके दिया. एंड ये मेरी किस्मत है कि वो माइक मुझे वहाँ से मिल गया, एंड आई एम एबल टू डू द शो बैक अगेन, एंड द क्वालिटी इज सुपर्ब. सो कैप्टन अमेरिका, गुड टू सी यू. स्टीव रॉजर, salute to you and welcome in my show, and everyone who are listening to me. God bless you all. क्योंकि मुझे नहीं पता मेरे पास लाइफ में कितना टाइम है. एवरी डे आई जस्ट थैंक्स टू गॉड फॉर गिविंग मी दैट प्रेशियस डे. हम लोग पता नहीं कौन से सामान में, कौन सी प्लानिंग में लगे रहते हैं पूरी ज़िंदगी, और हमें मिलता मिलाता कुछ भी नहीं है उसमें. एंड आफ्टर दैट हम लोग जो सोचते हैं वो होता नहीं है. बहुत सारे लोगों की गलत फहमियाँ हैं कि वो जो सोचते हैं वो ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता. ज़ाहिर है कैप्टन अमेरिका, उसी माइक से आपकी मोहब्बत है भाई. आपने सर्च किया था, मैं आपका टाइम वेस्ट थोड़ी करूँगा. तो कहते ये हैं कि लिव लाइक देयर इज़ नो टुमारो एंड ऑलवेज डू योर बेस्ट. और ऐसा कुछ करके जाएं दुनिया में जो आपको पीछे फीलिंग रिग्रेट ना हो, उस बात का पछतावा ना हो कि यार मैंने कोई ऐसी गलती की थी कि जो मुझे मेरे आगे आ रही है, या फिर मुझे उसका गिल्ट है जाते हुए यहाँ से. सो दैट इज़ द थिंग.
ऑलराइट, वेलकम करते हैं यहाँ पे सबसे पहले फैल्कन को अपने शो में, एंड सामरिया हमारे साथ मौजूद, इनको वेलकम करते हैं। रिशेल हमारे साथ, इनको वेलकम करते हैं। मीठी हमारे साथ मौजूद, इनको वेलकम करते हैं। द ग्रेट जॉम्बी इज ऑल्सो हियर, इनको वेलकम करते हैं, जो सिर्फ रात को निकलती हैं शो सुनने के लिए उर्दू मज़ा लॉबी पे। इसके अलावा अल्फा हैं, अल्फा को वेलकम करते हैं अपने शो में। एंड कैप्टन अमेरिका इज ऑल्सो हियर, इनको वेलकम करते हैं। हम नवा द यंग अराइविंग इन उर्दू मज़ा लॉबी, आपका बहुत शुक्रिया। जकाल एज ऑलवेज, एज ही हैज़ अ हिलेरियस सेंस ऑफ ह्यूमर, आपको भी वेलकम करते हैं। लोन राइडर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, the side hero is back on the DJ and playing the songs for the people. Thank you so much. आज इत्तेफाक से रेबल ने भी हमारा रेडियो जो है वो ट्यून इन कर लिया है, इनको भी वेलकम करते हैं। और काफ़ी टाइम से ये हमारे जो है प्रीमियम यूज़र्स में से हैं, और इनको भी हम कहते हैं अपने शो में खुश आमदीद। एज वेल एज द साइम इज़ हेयर, लुक एट यू साइम। साइम भाई हमारे साथ आ चुके हैं। द फ्रिक्वेंसी आरजे, आपका बहुत शुक्रिया उर्दू मज़ा लॉबी पे, स्वागत है आपका। इसके साथ द ग्रेट मूडी गर्ल, जिनको आज तक सिर्फ रशियन लैंग्वेज ही समझ में आती है, इसके अलावा वो कोई और लैंग्वेज नहीं बोल सकती, ना वो समझ सकती हैं। आपका भी वेलकम दिमित्री। इसके अलावा गेस्ट हमारे साथ हैं, गेस्ट को वेलकम करते हैं अपने शो में। लेडी बग ने हमें ज्वाइन किया है, इनके फेवरेट इमोटिकॉन्स हमने ऐड कर दिए हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। नकाब पोश हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि नकाब पहन के निंजा बन गया है, उनको भी वेलकम करते हैं। साथ में द ग्रेट जैनी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, इनको भी वेलकम करते हैं। तो दिस इज़ द क्राउड, द पीपल ऑफ उर्दू मज़ा लॉबी। इसके साथ सावरिया, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग अ वंडरफुल बैनर रिगार्डिंग माई हॉरर शो। मीठी, आपको ये कहना चाहूँगा कि आपने बैनर बहुत ज़बरदस्त बनाया और मज़ा आया उसको देख के। मतलब उसका जो फीलिंग थी वो मुझे 90s और 80s के सिनेमा की याद आ गई। उस वक्त वो कहानियाँ आती थी, खूनी दरिंदा, जगाल के नाम से एक आता था, खूनी भेड़िया जंगल में, तूफानी चुड़ैल, नाचता जोकर, उड़ता कबूतर, इस तरह के जो है वो उस टाइम की मूवीज़, हमारी नॉवेल्स आते थे, जो नौनिहाल आप लोगों ने पढ़ी होगी, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे, उस पर वो स्टोरीज आती थी। एंड दोज स्टोरी आर सो कूल। और उस पर वो जो पोस्टर वो लोग बनाते थे ना, मज़ा आ जाता था उसको देख के। एंड मीठी ने बिल्कुल वैसे ही बनाया, ऐसा पोस्टर बनाया कि मैं देख के फीका हो गया उसको, और मतलब मैं स्टन हो गया। मैंने कहा यार बंदी ने बनाया है, यार आर्ट है बंदी, क्रिएटिविटी। अब वो बैनर जाएगा सीधा यूट्यूब पे इनकी स्टोरी के साथ, वो हम थोड़ा वेट करेंगे, मुलाजा फरमाएंगे आप सबके साथ, आपको दिखाएंगे लेट। तो जनाब चलते हैं, शो को स्टार्ट करते हैं। पहले पड़ाव में हम आपके साथ खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति, और आपसे पूछेंगे 3-4 सवाल, जिसका आपको जवाब देना होगा, और जवाब देना होगा म्यूज़िक की सूरत में, टॉपिक की सूरत में। आई एम रियली सॉरी। टॉपिक जो है हमारा आज का, आपका वेरीफाइड DFM यार मैं हंस भी नहीं सकता। तो ये जो है ना, जवाब आपको देना होगा कि टॉपिक आपका बड़ा ज़बरदस्त है आज का। हमने जैसे कि बहुत सारे इमोटिकॉन्स बनाए हैं, लोगों के अपने अपने फेवरेट चीज़ें होती हैं जब वो मोबाइल यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, और स्पेशली मोबाइल यूज़ करते हैं, तो उसमें उनके कोई बहुत ज़्यादा फेवरेट इमोटिकॉन यूज़ होते हैं, जो अबाउट चैट के बारे में बात हो रही है। उस पर जब तक हम इमोजीज़ ना बनाएं, हमारी चैट मुकम्मल नहीं हो सकती। तो आप लोगों का फेवरेट इमोटिकॉन क्या है, आप लोग मुझे PM भी कर सकते हैं, या अपने अपने इमोटिकॉन जो आपके फेवरेट हैं उर्दू मज़ा लॉबी पे जो ऐड हुए हैं रिगार्डिंग, वो कौन से हैं, आप हमें शो कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। ये तो था आपका पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक हम आपको ट्रैक के बाद आके बताएंगे, जो ट्रैक हम आप लोगों के नाम करने जा रहे हैं। तब तक आप इस टॉपिक पर गौर कीजिए और बताइए आपका फेवरेट इमोटिकॉन कौन सा है। जिसका फेवरेट इमोटिकॉन है वो अपने नाम के साथ, मतलब टैग तो आता ही है, FAV लिखे यानी फेवरेट, और उसके आगे इमोटिकॉन बना दे, ताकि हमें पता चल जाए कि आपका फेवरेट और टॉप ऑफ द लाइन इन पूरी कैटेगरी सिलेक्शन ऑफ इमोटिकॉन्स में से कौन सा सबसे बेस्ट इमोटिकॉन है। और इमोजीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारी टेक्स्ट पर आपस में बात करने में, अपने इंप्रेशन शो करने में। इनफैक्ट मैं यहाँ पर स्माइल यूज़ करता हूँ लोगों को वेलकम करने के लिए। बहुत से तो उसमें से ऐसे थे, मैं शुरू में आया, मैंने वेलकम किया, हेलो क्या हाल है, और आगे वेलकम करके मैंने स्माइल बना दी। बंदी क्या बोलती है आगे से, आरजे मुझे शक हो रहा है ये आपकी फेक स्माइल है। अब हाउ डू यू से दैट, लाइक आई एम डूइंग अ फेक एंड गिविंग यू द फेक स्माइल। मेरी तो आदत ही है, मैं तो सबसे हंस के मिलूंगा ना यार, फिर रोते हुए थोड़ी मिलूंगा। अच्छा गैस पूछ रही है आरजे, टॉपिक बताएं फिर से। टॉपिक ये है कि आपका फेवरेट इमोटिकॉन कौन सा है, आपने वो लिखना है FAV, मतलब फेवरेट का शॉर्ट फॉर्म, उसके आगे अपना इमोटिकॉन बनाना है, ताकि मैं उसको अनाउंस करूँ कि आपका इमोटिकॉन कौन सा है। और इमोटिकॉन्स रियली हेल्प
अस जब हम चैट कर रहे होते हैं। अब वहाँ पर हंसना भी मना है। उस लड़की को शायद ये लगा मैं फेक स्माइल कर रहा हूँ। क्यों लगा? क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब हम ऐसे इमोटिकॉन्स भेजते हैं तो वो लोग सैड होते हैं अपनी लाइफ में, किसी से लड़के आ रहे होते हैं, फड्डा हुआ होता है, एंड सडनली हम उनको एक हंसने वाला इमोटिकॉन भेजते हैं। दे आर जस्ट लिटरली शॉक कि आप हंस क्यों रहे हैं? मना किया था ना आपको मैंने। जस्ट दे बिकम अ सीरियस लाइक ना, गर्ल्स या बॉयज जो भी, आप हंस क्यों रहे हैं? मैंने आपको मना किया था ना, आपकी हंसने वाली बात थोड़ी है कोई। तो अब क्या वहाँ पे सीन क्या चल रहा है कि भाई हमें हंसना मना है, मतलब हम इमोटिकॉन भेज नहीं सकते उसको हंसने वाला, तो हम रोना शुरू कर देंगे। जब रोना शुरू करेंगे या मतलब ऐसा सीरियस मूव बनाएंगे तब जाके चैन आएगा कि हाँ अब ये मेरे दुख में शामिल है। तो ऐसा नहीं है। अगर वो हंस भी रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग अपनी गलत फहमी दूर कर लें, वो आपको हंसाने के लिए भी हंस रहे होते हैं, आपका मूड सही करने के लिए भी हंस रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो हमारी बात पे हंस रहे हो। अगर वो ज़्यादा हमारी बात में हंस रहे होंगे तो वो बहुत ज़्यादा देर तक हंसते रहेंगे, हर इमोटिकॉन हर लाइन के साथ इमोटिकॉन भेजेंगे आपको ना, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, आगे हंस रहे हैं, तो समझ आता है कि चलो मजाक चल रहा है। एक आदमी बंदा हंस गया भाई, उसकी छुट्टी, अब तो मैं बात ही नहीं करूँगी आपसे। अब आप एक दो दिन ऐसे ही बैठे हैं, जेल की हवा खाएं, उसके बाद आएगा एक सीरियस इमोटिकॉन भेजिएगा या रोते हुए इमोटिकॉन भेज के आई एम सॉरी लिखिएगा, फिर बात होगी। तो गर्ल्स आर रियली रियली सेंसिटिव। उनका कोई वो नहीं है कि वो कहाँ से लड़के आ रही हैं। अच्छा बहुत बाजों का ऐसा होता है लड़ते भी नहीं है ना, मतलब घर में किसी ने डांट दिया, अम्मी अब्बू ने बताएंगे भी नहीं ना कि मुझे क्या क्या कहा गया, चुड़ैल कहा गया, डाइंग कहा गया, तुम ये काम नहीं करती, तुम निकम्मी हो, तुम नालायक हो, तुम सुस्त हो, वो ये सब नहीं बताएंगी। वो बोलेंगे हम बहुत काबिल हैं अपने घर में, एक आध मिस्टेक हो गई, पत्नी किसी बात पे लड़ाई हो गई तो मैं इसलिए मेरा ना मूड खराब है, मैं यहाँ पे आ गई हूँ, अब तुम क्यों हंस रहे हो मुझे देख के? उसको क्या पता बंदी के दिल में क्या चल रहा है यार। मतलब बजा दी उसकी, फ्री फंड में बजा दी। मतलब वो एक अच्छे खासे मूड में बाहर से पिज्ज़ा खा के आ रहा है, यहाँ आया, जैसी मैसेज किया वो दूसरा तरफ से रिप्लाई आ रहा है, आप मुझसे आइंदा बात नहीं करना, तुम तो हंसते रहते हो, तुम सीरियस नहीं हो मेरे साथ, मतलब मेरी बातों को, मेरे दुखों को समझते नहीं हो तुम। इन्होंने सच्चा प्यार और सच्ची दोस्ती कहाँ तक सोची हुई है ये मुझे आज तक नहीं पता चला। तो वो किसी भी तरीके से हम सेटिस्फाइड करने की, चाहे लड़का हो लड़की हो, उसको कोशिश करते हैं, बट वो कभी कभी नहीं होते। तो उस सूरत में हमें क्या करना है कि हमें सीरियस ही रहना है। आपको अगर हंसना है तो आप अंदर ही अंदर हंस लें, ताकि आपको खुद पता ना चले कि आप हंस रहे हैं। साउंड ने हमें ज्वाइन किया, साउंड को करेंगे वेलकम। जॉम्बी करिए आरजे, मैं इमोजी के साथ बना तो मैसेज करके अपनी बात भी कह सकती, क्या क्वालिटीज़ हैं इमोजीज के साथ बना के, तो अपनी बात भी मैसेज पे कर सकती। अच्छा इसमें मैंने फिर भी पहले एक बार बता दिया था कि आप लोगों ने अगर किसी से कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है तो और लंबी है या इम्पोर्टेंट है, आप लोगों ने उसको जो है वो टेक्स्ट पे डिस्कस नहीं करना है, नॉट एट ऑल, स्पेशली इन रिलेशनशिप। आपने कॉल करके बात करनी है या लाइव बात करनी है सामने फेस टू फेस। दैट इज़ द थिंग। कभी भी मैसेज पर कोई बात नहीं करना, क्योंकि मैसेज पर बंदे को अपनी तरफ से ये लग रहा होता है कि हम कुछ और सोच रहे हैं, वो कुछ और सोच रहे हैं। ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। ऐसा कभी नहीं करना, क्योंकि हम किसी को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, सामने वाला समझ रहा होता है हमारे अंदर गुरूर है, हमारे अंदर कोई और मसला आ गया है, हम बहुत ज़्यादा ताव दिखा रहे हैं। तो ये सीन था, और इस चीज़ को हमें समझना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक योर लाइफ बेटर एंड आई एम टोटली वर्क ऑन इट। तो आप लोगों को वो सुनना चाहिए। रेहान अली ने हमें ज्वाइन किया, इनको वेलकम करते हैं। एंड हमारे पास कुछ मैसेजेस आए हैं, साउंड ने हमें ज्वाइन किया, इनको भी वेलकम करते हैं। गैस को आई होप टॉपिक मिल गया होगा। आप लोगों ने करना ये है कि आगे FAV लिखना है फेवरेट करके, या F लिख दें खाली। तो F के आगे जब आप अपना इमोजी या इमोटिकॉन फेवरेट बनाएंगे तो हम डेफिनेटली उसको ऑनर करेंगे और आपके बारे में जानेंगे कि आपको कौन सा इमोजी सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है, राइट। तो भाई सब हंस भी रहे हैं, सीरियल ने भी ज्वाइन कर लिया। सीरियल को वेलकम करते हैं अपने शो में। और सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं, विंटर अराइव हो गई हैं। मच्छर जो है वो एज यूजुअल जो है वो आके कान में वायलेंस बजा रहे हैं, बता रहे हैं कि सर्दियां आ गई हैं, अपनी अपनी जैकेट्स निकाल लो। तो अगर आप में से किसी ने अपनी स्वेटर या जैकेट नहीं निकाली तो काइंडली वो निकाल लें और उसको पहन के बाहर निकलें। उसको पहन के जो है वो, अभी इतनी सर्दी पड़ने वाली है कराची में या ऑल ओवर पाकिस्तान में, या आप लोग कहीं पे भी हैं, क्योंकि जब विंटर सीजन आता है तो वो ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पर भी जो है वो पड़ रहा होता है, वो वहाँ तक पहुँच जाती है सर्दी। तो आप लोग जो है वो कपड़े वगैरह जो है वो गर्म पहने ताकि आप लोग सेफ रहें, ज़रा फ्लू वगैरह ना। और गर्म कपड़ों के साथ साथ ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीजिएगा सर्दी में, बिल्कुल भी नहीं पीजिएगा, क्योंकि वो गला फ़ौरन पकड़ेगा और आप डायरेक्ट जो है वो कफ और फ्लू या फीवर का शिकार हो जाएंगे। कोई और काम नहीं होगा आप सबसे। दैट इज़ द थिंग। फर्स्ट ट्रैक की तरफ चलते हैं, जो कि वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक्स ऑफ ऑल टाइम, और पाकिस्तान का ये ट्रैक है। एंड आई वॉज जस्ट लिसनिंग व्हेन आई वॉज जस्ट लिसनिंग एंड डाउनलोडिंग दिस ट्रैक। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने शॉक्ड हुआ। जब मैं छोटा था उस वक्त म्यूज़िक का मुझे कुछ ही पता था, कुछ नहीं पता था, और नेट पर इतनी सर्चिंग नहीं थी, हम अब अनेबल थे उसको ढूंढने में किसी भी ट्रैक को या गाने को।
तो जब हमने ढूंढा तो इट्स वाज लाइक यार ये कमाल हो गया है यार, वो जस्ट मैचिंग लाइक अ लिंकिन पार्क एंड ऑल दी अदर रॉकिंग बैंड्स। टैलेंट की कमी नहीं है हमारे मुल्क में। पता है टैलेंट रुका क्यों है? टैलेंट रुका है कि हम चांस नहीं देते सबको। दैट इज़ द थिंग। हम टैलेंट बेस के ऊपर काम ही नहीं करते। जिस दिन हमने टैलेंट बेस के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, पाकिस्तान दुनिया में टॉप ऑफ द लाइन माना जाएगा। दैट इज़ द ओनली थिंग, मार्क माई वर्ड्स ऑन दिस। क्योंकि बाहर जितने लोग काम करते हैं उन सबको चांस दिया जाता है। सो दे स्टार्टिंग टू ग्रो अप। एंड कैप्टन अमेरिका कह रहे हैं उनको खाने का ये नाइफ और फॉर्क वाला जो इमोटिकॉन है ये बहुत अच्छा लगता है। दैट्स अ गुड थिंग। और इन्होंने ये पहले टॉपिक का आंसर दिया है। ये आरजे ये आपका इमो। अच्छा भाई, आपको जो फेवरेट लगता है वो भी आपने लिखना है। आपने ये दे दिया, बड़ी बात है। आयन ने हमें ज्वाइन किया है। आयन कैनन को वेलकम करते हैं। काशिफ भट्टी साहब आ चुके हैं हमारे साथ और इनको भी साथ में हम वेलकम करेंगे और आप सबको वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन एंड ज्वाइन विद अस एंड लॉट ऑफ क्राउड। आई एम रियली गुड टू सी यू पीपल हेयर बिकॉज मैं जब कुछ करता हूँ स्पेशली ऑन वीकेंड तो शो बड़े काम के होते हैं वो, और आप लोगों के लिए भी बड़े लर्निंग पॉइंट होते हैं उसके अंदर और समझने वाली बातें होती हैं जो आपको मज़ा आएगा, आपको इंटरटेन मिलेगा स्पेशली म्यूज़िक के साथ। सो ये था हमारा एक तो सीन। और दूसरा ये कि थैंक यू सो मच कैप्टन अमेरिका फॉर टेकिंग अ पार्टिसिपेट इन टॉपिक। जितने लोगों को और भी जो इमोटिकॉन फेवरेट हैं वो लोग लिख सकते हैं हमारे साथ। एफ लिख के आगे अपना इमोटिकॉन पेश करें ताकि हम उसको बता सकें कि आपका फेवरेट इमोटिकॉन कौन सा है। जैसे अभी हमें कैप्टन अमेरिका ने बताया कि उनका डिनर करने का जो फॉर्क और नाइफ जो उनके हाथ में है और वो ज़ुबान निकाल रहे, उनको खाना भूख लग रही है। उन्होंने ये तो सही पहचाना कि मेरी आदत यही है। उन्होंने मेरे ऊपर ये मुझे दे दिया, वो इमो अपनी तरफ से गिफ्ट कर दिया, मगर उनका फेवरेट है तो हमने उसको बता दिया। अच्छा जी, कैप्टन अमेरिका का सबसे फेवरेट है कि वो पीसीओ से फ़ोन पे बात करते हैं बूथ पे खड़े होके और देख रहे हैं वो। अभी उन्होंने हमें बता दिया अपना फेवरेट इमोजी। थैंक यू सो मच कैप्टन अमेरिका फॉर शेयरिंग दिस। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो गाने के बाद आ रहा है आप लोगों के लिए। हम वो गाना प्ले करने जा रहे हैं आप तमाम प्यारे प्यारे लोगों के लिए जो इस वक्त यहाँ उर्दू मज़ा लॉबी में मौजूद हैं और हमारे म्यूज़िक का वेट कर रहे हैं और वो आने वाला है और आप सब कुछ को आई होप इन्जॉय करेंगे। इट्स अ वेरी रॉकिंग साउंड जो हम लोग जिस तरह से मैं मशहूर हूँ, आप लोगों ने सबने मशहूर किया हुआ है फ्रिक्वेंसियर आरजे और प्रोफेशनल आरजे और लाइक दैट और दिस एंड दैट एंड ऑल। थैंक यू सो मच, ये सब आपकी मोहब्बत है, प्यार है, बट मैं आरजे इसलिए करता हूँ कि ये मेरा पैशन है। आई लव टू डू आरजे एंड गिविंग अ नॉलेज टू द पीपल। और लोगों को नॉलेज देने का मकसद सिर्फ इतना सा है मेरा कि वो आगे कुछ बन जाएं, वो कुछ हासिल कर लें और वो आगे बढ़े अपनी लाइफ में। मेरे टाइम पर मुझे बहुत कम लोग थे मेरे पास जो सिखाते थे या बताते थे। ज़्यादातर मैंने स्टडीज़ से ही सीखा और जिनसे पूछता था वो बताते भी नहीं थे। और मज़े की बात थी कि मेरे बाबा भी बाहर थे और आई वॉज टोटली अलोन इन माई चाइल्डहुड। तो मुझे कोई समझाने वाला था ही नहीं मेरे पास। मैं किसी की सुनता भी नहीं था, मैं बहुत शरारती। अब जाकर तो मैं बहुत सीधा हो गया। उस वक्त तो लोग अल्लाह की पनाह मांगते थे मुझसे जब वो आते थे घर पे। उसका एक वाक़या आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। अब वो बैंड बज जाएगा, लेकिन हो सकता है मेरा कोई फैमिली मेम्बर सुन ले मेरा बैंड बज जाए, लेकिन फिर भी चलो इशारों इशारों में कर देंगे। साउंड कह रही हैं आरजे आप अच्छे आरजे हो सकते थे बट आप बहुत अच्छे आरजे हैं। खाना हजम नहीं हो रहा मेरा, बल्कि हो गया ये सुन के। अच्छा भाई, ये आवाज़ ने ज्वाइन किया और इनको आती है एडमिनिस्ट्रेशन में। अच्छा, बड़े बड़े लोग हैं, मैंने देखा अभी 2-3 दिन पहले नोटिस किया, पुराने लोग आ रहे हैं नए नए निक रख के, नए नए चावल बन के आ रहे हैं, पुराने चावल इस और स्पेशली उसमें गर्ल्स भी शामिल हैं और बॉयज़ भी। मतलब पुराने निक थे उनके कुछ और, जैसे ही सर्वर अपडेट हुआ वो नए निक के साथ आ रहे हैं, बाद में सरप्राइज कर रहे हैं। अच्छा जी, हम तो वो थे जिसके आप बैल बजा के भागते थे पड़ोसी। मैंने कहा अच्छा भाई सही है यार, तुम लोग सही जा रहे हो भाई, हमसे तो नहीं रखे जाते ऐसे निक, तुम लोग कैसे रख लेते हो यार। हम तो वही शुरू से एक वोटेक्स फटा पुराना कपड़े वपड़े वही आपके सामने आ रहा है, वही शो कर रहा है, सब चीज़ें कभी चेंज करने की नौबत ही नहीं आई ना। अच्छा, थैंक्स टू यूट्यूब फॉर गिविंग मी माई ऑफिशियल नेम आरजे वोटेक्स ओवर देयर, क्योंकि वहाँ उससे पहले मेरा नाम ग्रिम मंकी था। वो मैंने कभी ऐसी बचकाने उसमें बना ली थी आईडी, मुझे खुद भी नहीं पता था मैं क्या लिख रहा हूँ और बाद में मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो दैट इज़ द थिंग, मेरे साथ भी मसले हो जाते हैं बहुत सारे। संगे आरजे आई लव योर वॉइस एंड स्टाइल। अबे यार मैं बस सही बात बताऊँ, ऑनेस्ट बात बताऊँ तुम लोगों को सबको बताऊँ, अभी एनर्जी 25% है खाली, 25। 100 तो है ही नहीं, पीछे बाबा सो रहे हैं और मैं शो कर रहा हूँ, अब आप अंदाज़ा लगा लो। दैट इज़ द ओनली रीज़न आई एम अनएबल टू डू प्रोवाइडिंग अ कंप्लीट एनर्जी। बट आप इन अदर अपकमिंग मंथ्स यूएमएल को हिला दूंगा मैं। वो लोग तो जा रहे हैं, फैमिली नहीं होगी उसके बाद आरजे और उसके फैंस। तो आप लोग समझ सकते हैं मेरी
मेरी कैफियत समझ सकते हैं इस वक्त। तो आई एम जस्ट टेकिंग अ ब्रेक हियर। अब हम चलेंगे। कहाँ है तू, कहाँ हूँ मैं, कहाँ है जिंदगी। सो लेट्स स्टार्ट द पार्टी गाइस ऑन उर्दू मज़ल लॉबी। चलते हैं फर्स्ट ट्रैक की तरफ। आप लोगों के सामने आ रहा है लोन राइडर। कह रहे हैं आप गा रहे हैं सॉन्ग। लोन राइडर का मुझे पुराना कमेंट अब तक याद है, ये मुझे यूएमएल के जुबिन न्यूटियाल कहते थे। भाई ये जुबिन न्यूटियाल की आवाज़ बहुत अच्छी है यार। मैं कहा मतलब गली का सिंगर यू नो, मेरी आवाज़ बस लोग लाइक कर लेते हैं, ये अल्लाह की मेहरबानी है और उनकी मोहब्बत है। Here comes a track, let's enjoy guys। आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Stay tuned, keep rocking with this upcoming track। We will be right back। Thank you so much everyone for joining me। This is Midnight Horror Show with RJ Vortex on Urdu Mazal Lobby। लम्हा बढ़ने लगे, बेखुदी के वो रास्ते और हम उसी पे चल दिए। सोच के सारी वो बातें हम उसी पे रो दिए। आज तो ये हाल है, ये जिंदगी हम पे हंसे। जिंदगी तेरे वास्ते, ये हिम्मत मेरे हाथ में, ये चेहरा तेरे चेहरे पे, ये सांसें धीरे धीरे ये जिंदगी नफरतों में खो गई। ये आसमां और ये ज़मीन आज है तो कल नहीं। जिंदगी तेरे वास्ते, ये हिम्मत मेरे हाथ में, ये चेहरा तेरे चेहरे पे, ये सांसें कहाँ हूँ मैं, कहाँ है तू, क्या है ये जिंदगी। कहाँ हूँ मैं, कहाँ है तू, क्यों हुए अजनबी। Living in the world of hypocrisy, the lies and the deceit. The one who shall rule us all will be the one and only. Watch out! Lyrics on the floor, on your minds, get set, go. I'm a white boy, coming straight from the L-town, giving it real. I'm a born of the underground, I'm the one you hate, I'm the one you fear. I'm the voice of the whisper inside your ear. Cut you open deep inside when you know what I speak, everything is right. All of it counts, the more you push me, the more I bounce, bounce, bounce. I said bounce, boy, bass to the king, to the rhythm I can art. Where you gonna run, where you gonna hide? Wanna grab the microphone and say what I like with the people of the never-ending street. I am what I am. And I am free. कहाँ हूँ मैं, कहाँ है तू, क्या है ये जिंदगी। कहाँ हूँ मैं, कहाँ है तू, क्यों हुए अजनबी। कहाँ हूँ मैं, कहाँ है तू, क्या है ये जिंदगी।
ऑलराइट, वेलकम करते हैं एक बार फिर से सबको। जो लोग BRB कह रहे हैं उन सब लोगों ने वॉशरूम या पानी पीने का ब्रेक लिया है, उन सबको करते हैं टेक योर टाइम, यानी TYT। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस हियर एंड एंजॉयिंग विद मी ऑन द रेडियो ऑफ उर्दू मज़ा लॉबी। आप सबका अपना उर्दू मज़ा लॉबी। कीप शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली who are able to enjoy and passing the time here just like us। कैप्टन अमेरिका कह रहे हैं एक अच्छी सी गज़ल भी। यार अगर मैंने गज़ल प्ले कर दी ना, वैसे ही सर्दियों के दिन है, यकीन करो अगर मैंने गज़ल प्ले कर दी मेरा शो डाउन हो जाएगा। आई मीन टू से, मैं जब गज़ल सुनता हूँ ना वैसे ही मुझे नींद आ रही है, मैंने वो तोड़ के शो स्टार्ट किया। एंड इट्स नॉट द मिस्टेक ऑफ गज़ल। गज़ल एक ऐसी जगह होती, मतलब एक गज़ल थी जो मेरे शो में सुनने आती थी, एक गज़ल ये थी जो हम सुनते हैं शो में, और उसके बाद जो है वो डायरेक्ट सो जाते हैं, मुंह खुल जाता है और हम सो रहे होते हैं, हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। तो दैट इज़ द थिंग। उसके बाद एनर्जी बिल्कुल लो लेवल पे चली जाती है और ऐसा लगता है कि दो मिलने और प्यार करने वाले लोगों के बीच में दरार डाल दी हमने गज़ल प्ले करके। एंड आफ्टर दैट दे आर कांट बी एबल टू हैप्पीली गेटिंग मैरिड विद ईच अदर। जितने भी फैमिली मेम्बर्स है, जो आगे पीछे के मोहल्लेदार थे, उन सब ने उनको बदनाम कर दिया। दैट्स वाई दे हियरिंग द गज़ल। एंड आफ्टर द गज़ल जो रियल गज़ल है वो भी सुन के उस चीज़ को भाग जाती है। वो कहती है मैं आइंदा आपके शो में नहीं आऊँगी। तो देन सम डे हम ऐसी भी गज़ल नहीं चुनी ट्रस्ट मी। उसके बाद क्या, अब मैं गज़ल तो फिर भी प्ले कर दूंगा कभी, वो टेंशन नहीं है। लेकिन जो मैंने आज ट्रैक सेलेक्ट किए ना, वो किसी गज़ल से कम नहीं है और उनको सुनने, स्पेशली हमारे बीच में गज़ल आई हैं, उनको हम करते हैं अपने शो में वेलकम। और जब वो आएंगी तो मैं कैप्टन अमेरिका को एक्नॉलेज कर दूंगा एंड कैप्टन अमेरिका विल डेफिनेटली लाइक द सूदिंग ट्रैक। आई नो इन द स्पेस ऑफ गज़ल, तो हम बता देंगे। टॉपिक हमारा ये था आज का कि अपना फेवरेट इमोटिकॉन आप लोगों ने बनाना है और उसके आगे F लिखना है मेन चैट पर और आगे अपना इमो बना देना है, जैसे कैप्टन अमेरिका ने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया। लोन राइडर कह रहे हैं एल्विस सॉन्ग कोई लगा दो। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिस इज़ अ टॉपिक शो एंड दिस इज़ अ द थिंग्स आर गोना सेट ऑन दिस शो। तो हम अभी फ़िलहाल तो कोई भी टॉपिक में मतलब सॉन्ग नहीं प्ले कर सकते। मेरे अपने सॉन्ग जो है वो सेलेक्ट किए हुए होते हैं। बट ऑन द फैमिली शो लाइक आई कैन डू रेगुलर शोज़ हियर ऑन उर्दू मज़ा लॉबी नाउ डेज़। तो आप लोग मुझे उस पर अपने रिक्वेस्ट कर सकते हो अपने अपने सॉन्ग, तो मैं ज़रूर उसको प्ले करूँगा। अब कल का जो हमारा शो है वो हॉरर होगा, लेकिन उसके पहले मैं जो DJ करूँ या मैं शो कर रहा हूँ, उसके बाद आने वाले वक्त में जब साहिबा पोस्टर लगा दें न्यूज़ सेक्शन में, तो हो सकता है वहाँ पर मैं आप लोगों का एक ट्रैक रिक्वेस्ट शो भी करूँ, जिसमें आप सबकी ट्रैक रिक्वेस्ट ली जाएंगी और दिल भर के सब लोग अपना एक एक गाना दे सकते हैं जो उनका मनपसंद मन चाहा मिठाई की तरह फेवरेट हो, तो हम उसको ज़रूर प्ले करेंगे। लोन राइडर कह रहे हैं आई एम किडिंग योर कैरी ऑन सर, थैंक यू सो मच आप लोगों का मुझे अंडरस्टैंड करने के लिए। आवाज़ कह रहे हैं कि RJ ब्रो गज़ल ना कहो, गज़ल ने आ जाना। लोग इन्होंने सुना ही नहीं मैंने क्या कहा। गज़ल तो ऑलरेडी शो सुन रही है हमारा भाई, किस खुशफहमी में है। अब मैं वो गज़ल की बात कर रहा था जो वो नहीं सुनना चाहती। यार टॉक्सिक। एंड ये आवाज़ निक आपने जो रखा है ना, ये आप डायरेक्ट साउंड को हिट कर रहे हैं। वो इंग्लिश में आए हुए हैं, आप उर्दू में आए हुए हैं, सीन से इतना है। साउंड कह रही हॉरर शो कब करेंगे आप? वो कल सेम टाइम सेम प्लेस सेम पीपल जी, तो हम यहीं करेंगे वो, और 1 बजे करेंगे। तो वो कल आपने आना है, हाजिर होना है। और मीठी ने भी इस पिछले प्रीवियस हॉरर शो में पार्टिसिपेट किया था और मुझे बड़ी खुशी हुई थी। और वो रैंडमली हमने वेडनेसडे को शो कर दिया था, क्योंकि अब रोज़ाना मेरे पास मेरे बैनर्स लग रहे हैं कि भाई शो करना है। और मेरा अभी मज़ेदार सीन बताता हूँ। सांवरिया ने यानी साहिबा ने 2 दिन मेरा ना बैनर लगाया, 1 बजे का ना मेरा शो है। मैंने कहा ठीक है जी। मैं आया, मैंने देख लिया 8-9 बजे, हाँ मेरा शो है। अब बीच में काम भी ज़्यादा था, तो 8-9 बजे का टाइम था। आई वॉज जस्ट चेकिंग के यार बैनर लगा हुआ है, अच्छा उसमें लिखा हुआ है RJ वोटिक्स 1 AM रोज़ लग रहे हैं एंड हमसे वीकेंड में करते थे। तो पहले तो 2-3 दिन मैंने कर लिया, मैंने कहा हाँ यार चलो सही है करते हैं, कोई बात नहीं। जाहिर है लोग भी बोर हो रहे थे और हमने नया सब चीज़ें अपडेट करेंगी सर्वर की, तो वी हैव टू प्रोवाइड द एंटरटेनमेंट टू द पीपल। जाहिर है यहाँ हैं तो करना भी पड़ेगा इसे। तो अब जो पिछले 2 दिन थे, एक दिन तो मैं सो गया ना, मतलब अच्छा मैं सोता हूँ तो मेरी इतनी डीप स्लीप है, आई एम नॉट बी एबल टू वेक अप। आप लोग चाहे साउंड ब्लास्टर लगा दो, मैं उठूँगा नहीं, मेरी नींद इतनी पक्की होती है, थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह। तो मैं ऐसा सोया, मैंने बाद में जब मैं उठा मेरी आँख खुली 4 बजे। तो हमारे ड्रामे का प्रमोशन हो रहा था यहाँ पर, एंड आई वॉज थिंकिंग यार ये कैसे उठ गया, कॉल से उठा मैं और मेरी नींद पूरी हो चुकी थी। और मैं बोल रहा यार ये कौन लोग हैं जो उस वक्त कर रहे हैं, ग्रुप में कॉल थी, हमने खैर प्रमोशन की ड्रामे की। आफ्टर मैं सो गया, अगले दिन भी ये हुआ, मैंने आई वॉज जस्ट फील गिल्टी। मैंने कहा नहीं यार आज नींद तोड़नी पड़ेगी, लोग वेट करते हैं, आज वीकेंड है। वीकेंड तो हमारा ऑफिशियल होता है, तो हम उनको सही कंप्लीटली इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं। सो दैट इज़ द थिंग एंड हियर वी आर एंड डूइंग अ शो इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। तो ये था हमारा, अच्छा बहुत कम टाइम होता है 1 घंटे का, जिसमें हम अपनी सारी बातें आप तक पहुँचाना चाहते हैं, राइट।
तो हम रेबल करिए आरजे, बड़े ढीठ हो आप नींद को लेकर। बिल्कुल भाई, लोगों की तो बड़ी कच्ची नींद होती है, वो जैसी उठा नींद उठ, जैसी दरवाज़ा रात में हो ना, दरवाज़ा खोला, किसी ने, बंदा उठ गया वहाँ पे ना, देख रहा है यार कि कौन है यार, नींद तोड़ दी मेरी। अब वहाँ पे कुछ लोग ख़वातीन या जो बुज़ुर्ग हैं या बड़े भी हैं, जो मर्द हज़रात हैं, वो बुरा मुंह बना लेते हैं एंड से, यार क्या है यार, तो सोने नहीं दे रहे यार, रात का टाइम हो रहा है, पता नहीं तुम्हें क्या सूझ रहा है, तुम दरवाज़ा चर करे जा रहे हो। उसमें हल्की सी नींद हो गई, फ़ौरन खुल जाती है ना। मतलब एक आत्मा भी भटकेगी रूम में तो किसी की आँख, जैसे रेबल कह रही है दैट्स मी, तो उनकी आँख खुल जाती। और मैं गधे घोड़े बेच के, दुनिया जहाँ बेच के, पता नहीं उठेंगे कि नहीं उठेंगे, वो नींद आके सोते हैं। वो मच्छर भी काट रहे होते हैं तो उनको पता नहीं चलता, अच्छा ये तो वाकई सो रहा, सोने दो भैया इसको, ये हमेशा के लिए सो गया। तो सुबह उठ के नींद वापस, इंजन रीस्टार्ट होता है, सिस्टम रीस्टार्ट होता है, उसके बाद वापस आते हैं हम। अच्छा, टॉपिक पे आएँ। आज टॉपिक दे दिया ऑलरेडी आप लोगों को इमोटिकॉन्स का, वो तो आपने बता दिया। द थिंग इज द बोनस टॉपिक विच इज कमिंग विद दिस टॉपिक, एंड वी हैव 2 टॉपिक्स इन दिस शो। सेकंड टॉपिक है हमारा ये कि अगर आपसे कोई नाराज हो जाए लाइफ में, तो आप उसको कैसे मनाओगे, कैसे मनाओगे, क्या करोगे उसके लिए। अब जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ प्रेमिका ही हो, प्यार ही हो, मोहब्बत ही हो, देवदास ही हो, पारो ही हो, ऐसा नहीं है, लैला हो, मजनू हो, जरूरी नहीं है। दोस्त भी हो सकते हैं, काम करने वाले भी साथ हो सकते हैं, ऑफिस में, रिश्तेदारों में, खानदान में। आई नो खानदान में तो कोई किसी को नहीं बनाएगा, मुझे पता, सब यहीं आके अच्छे बनते हैं, वहाँ पीछे जाके कोई किसी से बात नहीं करता खानदान में। लेकिन इधर जो है वो, जैसे हम बात कर रहे हैं और हमें किसी को मनाना है, या हमारा कोई लव वन है जिसे हम चाहते हैं, उसको कैसे मनाओगे आप। कैप्टन मैं क्या कह रहे हैं, आरजे पर्सन पे डिपेंड करता है और सिचुएशन पे भी। तो भाई वही तो बताना है, ये डिपेंड तो मुझे भी पता है करता है हर चीज़ का, आप भी हम पे डिपेंड करते हैं, हम भी आप पे डिपेंड करते हैं, पूरी दुनिया पानी पे डिपेंड करती है, ऑक्सीजन पे डिपेंड करती है, बादल चल रहे हैं वो भी डिपेंड करते हैं, नेचर वाइज जो है पूरी दुनिया प्लैनेट चल रहे हैं 9 वो भी डिपेंड करते हैं। अल्लाह ताला ने सब चीज़ें बनाई हैं कायनात में, सब डिपेंड करती हैं एक दूसरे पर। लेकिन कोई भी चीज़ किसी के बगैर मुकम्मल नहीं है, लेकिन जो डिपेंड है उसको डिफाइन करना है, आपने एक्सप्लेन करना है कि कैसे मनाओगे। आप अपने आप को फील करोगे कि मैं क्यों मनाऊँ, वो तो खुद मनाएगा कि आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे, या आप अपनी ईगो मार दोगे, आप उसको जाके मना दोगे, आप उसके पैर पकड़ लोगे जाके, या आप उसको कहीं खाना खिलाने ले जाओगे, उसको ट्रीट दे दोगे, उसके साथ जाके उसको ख़त लिख दोगे, उसको ईमेल कर दोगे, उसको किसी के थ्रू बुलवाओगे कि यार आप जाओ उसको मना लो, वो मुझसे नाराज़ हुआ हुआ, क्या करोगे आप वो डिफाइन करना है। जब तक हम ट्रैक की तरफ जा रहे हैं आप लोग इस चीज़ को सोच के रखें। यू गाइज हैव 2 टॉपिक्स। लोन राइडर ने भी अपना इमोटिकॉन शेयर कर दिया है वेलकम का, बिल्ली वाला, उनको ये पसंद है, जैसे कैप्टन अमेरिका ने भी किया है। अब हम चलते हैं एक और नेक्स्ट ट्रैक की तरफ, आप लोग उसको एंजॉय करो। मैं आता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड, कीप लिसनिंग द शो ऑफ आरजे वोर्टेक्स ऑन द रेडियो फॉर द मज़ा लॉबी। कीप इलेक्ट्रीफाइंग योर सोल्स विद दिस अपकमिंग ट्रैक। आते हैं और फिर बात करते हैं आपसे टॉपिक के हवाले से। हैव अ स्नैक एंड बेवरेजेस फोक्स, वी विल बी राइट बैक आफ्टर द ट्रैक। एंड बिफोर आई गो विद दिस ट्रैक आई जस्ट वांट टू से दैट कि हम मनाएंगे कैसे। भाई मैं तो, मुझसे कोई नाराज़ होगा, मेरा अपना दोस्त, मेरा चाहने वाला, मेरा घर वाला, मैं उसको कैसे मनाऊंगा। द थिंग इज़ मैं उसको सॉन्ग डेडिकेट कर दूंगा। और वो सॉन्ग क्या होगा कि अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल मुझसे कोई नाराज़ हुआ है तो ये स्पेशली ट्रैक मैं उसके लिए इस शो में प्ले कर रहा हूँ। एंड आफ्टर दिस ट्रैक मैं आता हूँ, फिर आप लोगों से करता हूँ बातें। आप लोग भी सोच के रखें कि आप लोगों ने किस तरह से डिपेंड करना है, किस तरह मनाना है, क्या करना है, आप लोगों ने उनको कैसे प्रपोज करना है या माफ़ी के लिए, और किस तरह से माफ़ी मांगनी है, तरीका क्या होगा आपका, वो हमसे शेयर करिए और अपने इमोटिकॉन्स फेवरेट हमसे शेयर करें। स्टे ट्यून्ड, एंजॉय द ट्रैक, एंड दिस ट्रैक इज़ ओनली फॉर द पीपल जिनको मैं मनाऊंगा या मैं सॉरी करूंगा रिगार्डिंग दिस टॉपिक। सॉरी मेरे प्यारे, जाने तो होता है, छोड़ो भी जाने दो। सॉरी ओ सॉरी, जाने तो होता है, छोड़ो भी जाने दो।
आई एम सॉरी ओ सॉरी जाने दो, होता है छोड़ो भी जाने दो। हो गई गलती छोड़ो भी यारो, जीभ निकालो प्यारो, नींबू नमक चटकारो। हो गई गलती छोड़ो भी यारो, आई एम सॉरी ओ सॉरी जाने दो, होता है छोड़ो भी जाने दो। आई एम सॉरी मेरे प्यारे जाने दो, होता है छोड़ो भी जाने दो। देखो रे देखो है कोई गड़बड़, नैन हमारे पड़ के, जाने क्यों दिल धड़के। शेर आया शेर आया शेर आया शेर आया, भागो रे सर नीचे पैर ऊपर भागो रे। छोटा सा ये घर तो महल है कल का, देखो कैसा रंग पड़े छलका, देखो कैसा रंग पड़े छलका। ये सपना सच्चा हो जाने दो, हंस खिल के हिल मिल के गाने दो। ये सपना सच्चा हो जाने दो, हंस खिल के हिल मिल के गाने दो। आई एम सॉरी ओ सॉरी जाने दो, होता है छोड़ो भी जाने दो। ओ सॉरी जाने दो, होता है छोड़ो भी जाने दो। हाय मुझे याद आए किसी की ये बात, छोटे बड़े दिल हिल मिल के कर जाए काम। ऐसा काम के जग में हो जाए ना, कोई जो रह जाए जल्दी से मिल जाए, ये ना हो के पीछे पछताए। जाने भी दो, जाने भी दो, जाने भी दो। That's okay, जाने दो, होता है छोड़ो भी जाने दो। आई एम सॉरी बाबा सॉरी जाने दो, होता है छोड़ो भी जाने दो। That's okay, जाने दो, होता है छोड़ो भी जाने। आई एम सॉरी ओ सॉरी जाने दो, होता है छोड़ो भी जाने दो। बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं दुनिया में जो हम अपनी ईगो की वजह से, अपने गुस्से की वजह से उनको खो देते हैं। क्यों? वी आर अनेबल टू सॉरी टू देम। क्यों? हमारी ईगो बीच में आ जाती है। क्यों? हम ये नहीं सोचते कि हमारी लाइफ 4 दिन की है, उसके बाद हमें भी यहाँ से जाना ही है। लेकिन क्या होता है, हम पूरा ज़िंदगी उनसे बात नहीं करते, सॉरी नहीं करते, बात बात में गुस्सा करते हैं और गुस्से को और ईगो को उस रिश्ते से ज़्यादा अच्छी इम्पोर्टेंस दे देते हैं।
होता क्या है कि जो गुस्सा है, अगर आप उसको रियलिटी में देखो तो वो खुद आपका अपना दुश्मन है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कैसे गुस्सा और ईगो हमारे दुश्मन कैसे हैं? तो द थिंग इज, अगर आप अपने आप से क्वेश्चन करो कि मैं गुस्सा क्यों कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ, तो आपको उसका जवाब आहिस्ता आहिस्ता मिलना शुरू हो जाएगा। नहीं भी मिलेगा तो आपको पता चलना शुरू हो जाएगा, आपकी जो इंटेलिजेंस है वो वैल्यू एक्टिव हो जाएगी कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। उसका सबसे बड़ा नुकसान सॉरी ना करने का, दैट आप उस पर्सन को हमेशा के लिए खो देते हैं। बाद में आपको पछतावा होता है कि यार मैंने उसको सॉरी क्यों नहीं बोला, आज बोल देता या बोल देती तो मेरा रिश्ता जो है वो बच जाता। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं उस रिश्ते से, वो दूसरों की राय लेते हैं, आवाम की राय लेते हैं। याद रखें, किसी का भरोसा, किसी की दोस्ती जब आपको मिलती है तो आपका पूरा पूरा फ़र्ज़ है कि बहुत सारे लोग उसको आगे शेयर करते हैं दूसरे लोगों से, और वहाँ से उनका फंसने का रास्ता शुरू होता है। फ्रेंड्स चाहे कैसे भी हों, उनका रिश्ता उनके किसी हीरे से भी ज़्यादा कीमती होता है अगर हम इस बात को समझें। अगर हम उसकी कदर नहीं करेंगे तो वो हीरा हमसे खो जाएगा या टूट जाएगा या उसमें दरार आ जाएगी। ऐसी मिसाल हज़रत अली, मौला अली ने हमें दी है और सलाम ने। और दूसरी चीज़ ये है कि हम उसके अगर दूसरों से शेयर करना शुरू करते हैं तो आधे से ज़्यादा तो आवाम ही आपका रिश्ता ख़त्म करवा देती है, क्योंकि नाउ दे स्टार्टिंग टू शेयर अ पर्सनल ग्रजेस विद यू। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो आपसे शिकायत नहीं करते, लेकिन आपकी शिकायत अपने मन में लेके, अपने दिल में लेके घूम रहे होते हैं, और ऐसे ही किसी सिचुएशन का इंतज़ार कर रहे होते हैं, एंड दे ट्राई टू बस्टेड यू। पकड़ लेते हैं वो वहाँ पे आपको, और आपको गलत मशवरे देना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से आपका कोई भी रिश्ता हो वो ख़राब हो जाता है। फिर ज़िंदगी भर हमें पछतावा रहता है कि हमने उनको सॉरी क्यों नहीं बोला, उनसे माफ़ी क्यों नहीं मांगी, क्योंकि हमने अपनी तरजीह दी थी गुस्से को या ईगो को, जो हमें ज़िंदगी में कुछ नहीं देने वाला, और लाइफ ऐसे ही गुजर जाती है। हमें अकेला रहना मंजूर होता है, लेकिन हम वो एक अच्छी प्यार भरी लाइफ या केयर भरी लाइफ या एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझने वाली लाइफ नहीं जी पाते, इसीलिए हम अकेले रह जाते हैं। और फिर बहुत सारे लोगों के साथ ये भी सैड एक्सपीरियंस होता है कि उनका जो फ्रेंडशिप है या रिलेशनशिप है वो एक बार अगर टूट जाए तो वो समझते हैं कि उनकी लाइफ बर्बाद हो गई है, उनका रॉकेट फ्यूज़ हो गया है, उनका जहाज़ क्रैश कर गया है, अब वो कभी दोबारा नहीं उड़ेगा। ऐसा नहीं है। आई नो कि आप लोगों के साथ गलत नेगेटिव एक्सपीरियंस लाइफ में हुए, मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप अपनी लाइफ दोबारा ग्रो करने का हक खो दें या आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा। ऑलवेज ट्राई। कहीं भी किसी भी मोड़ पे रिलेशनशिप में या चलते हुए आप गिरें, उसके बाद आप दोबारा ट्राई करें। ज़रूरी नहीं है कि वो ख़त्म हो जाए। उनके लिए सबसे बड़ी बात यह है, जिन्होंने कभी धोखा भी दिया हो लाइफ में, कि आप कुछ बन गए हैं उनके बगैर होते हुए भी, या ये रियलाइज़ कर लें कि उनके आने से पहले जो फेक लोग आपकी लाइफ में आए थे, उनके आने से पहले भी आप अपनी ज़िंदगी में अकेले जी रहे थे और अपनी लाइफ को अच्छे से गुजार रहे थे। तो दैट इज़ द थिंग। तो आप हमेशा घर में माँ बाप हों, बहन भाई हों, दोस्त हों, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी केयर करें, उनको प्यार करें। आपका नहीं पता आपका जाने का टाइम कब लिखा हुआ है। ये ईगो, ये गुस्सा आपका यहीं रह जाएगा और आपको कुछ नहीं देगा। सबसे इम्पॉर्टेंट और बड़ी बात, मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, जब किसी पे गुस्सा करें, डीप वर्ड्स यूज़ करें, तो एक बात याद रखिएगा कि आप खुद उसकी नज़र में सबसे ज़्यादा बुरे बन रहे हैं। दैट इज़ द थिंग, दैट इज़ द मेन कोर ऑफ दिस थिंग। आपने कितनी भी मेहनत की उस रिश्ते को बनाने की, वो सब वेस्ट है आपके उस एक एक्ट से। इतना ख़तरनाक है गुस्सा, जब भी इस्लाम में हराम करार दिया गया है। इसलिए जब आ जाए, पी जाएं, खामोश हो जाएं, घर से बाहर चले जाएं, ताकि आप कुछ बात वहाँ कर ही ना पाएँ। गुस्से का एक इलाज बहुत अच्छा है, 5-10 मिनट बाद खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है, एंड यू आर एबल टू एक्सेप्ट सॉरी एंड मेक योर रिलेशनशिप बैक। आप दोबारा उसको बनाने के काबिल हो जाते हैं रिश्ते को। दैट इज़ द सीक्रेट रेसिपी विच आई एम गिविंग टू यू। लोग बहुत पैसे दे के लोगों के पास जाते हैं, फाइनेंशियल एडवाइस लेते हैं, रिलेशनशिप एडवाइस लेते हैं। नो नीड टू टेक देम। वो अपना पैसा बना रहे होते हैं, आपको वो कभी भी सही एडवाइस नहीं देगा। उसके ऊपर घुमा देगा, फिरा देगा, आप तो ये हैं, आप तो वो हैं, आपकी गलती आपके ऊपर डाल देगा। द सिंपल एंड द सूदिंग ट्रैक जो लाइफ का है वो ये है, आपको इस तरह से चलना है। अंडरस्टैंड दैट थिंग, अंडरस्टैंड योर रिलेशनशिप्स विच आर रियली इंपॉर्टेंट टू यू। उसके बगैर आप कुछ नहीं हैं। आप लाइफ में अकेले हैं, तो आप डिसाइड कर लें आपने अकेले रहना है या फिर अपने लोगों के लिए कुछ करके जाना है जिससे वो आपको हमेशा के लिए याद रखें। राइट। तो मैं कब्रिस्तान जाता हूँ, मैं कभी भी अपनी नानी की कब्र पे जाता हूँ, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता था। तो मैं वहाँ पे जाके दूसरी कब्रों पे भी जाता हूँ जहाँ कोई नहीं आता।
क्योंकि ये वो लोग भी उसमें होते हैं जिन्होंने कभी पूरी ज़िंदगी वो अकेले ही रहे, अकेले ही आके सो गए, कोई उनको पूछने वाला ही नहीं था। फिर कुछ लोग जो पूछते थे, किसी का ख्याल रखते थे, उनको भी कोई पूछने वाला नहीं था। दोनों तरफ बात बराबर है, मगर हमें वहाँ जाना क्यों चाहिए? उनकी कब्र पे भी फातिहा, सबकी कब्र पे सबकी मग़फ़िरत की दुआ, फिर उस पे फूल डालना, उसकी वजह यही है कि हमें भी एक दिन यहाँ आना है। प्लस उनको विज़िट करने में मुझे एक सुकून मिलता है कि उनका और मेरे बीच एक कनेक्शन है, कि दे आर वेटिंग फॉर मी, वो मेरा इंतज़ार करते हैं। अब इसके डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि शो बहुत लंबा हो जाएगा, ये हम हॉरर शो में डिस्कस करेंगे। राइट नाउ ये था हमारा टॉपिक, और आप लोगों ने बताया इसके बारे में। हमारे पास कुछ आंसर हैं टॉपिक के हवाले से, हम पढ़ेंगे कि अगर हमसे कोई नाराज़ हो जाए तो उसको कैसे मनाएंगे। तो इस पर हमें कहते हैं कैप्टन अमेरिका कि आरजे, अगर फ्रेंड नाराज़ हो तो एक्सप्लेन किया जाए, अदरवाइज़ मतलब बताया जाए। बहुत सारे लोग नहीं बताते, हमें खुद पूछना पड़ता है। अब यहाँ भी ईगो गुस्सा आ रहा है, उसको हटा के पूछना पड़ता है। डायरेक्ट दो कान के पास लगा के मना लिया जाए, ये इनकी तफरी का पार्ट है। ऐसे ये करेंगे नहीं, सॉरी करना है, वहाँ पे बात को बढ़ाना नहीं है। कान के नीचे लगाए तो वो दो लाते भी लगाएगा आगे से, या लगाएगी जो भी है, सैंडल उठा के फेंक के मारेगी। सोच लो भाई, वो कैप्टन अमेरिका की शील्ड भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी स्टीव रोजर को। अच्छा, दूसरा जो है, अल्फा ने हमें बताया कि अगर फ्रेंड नाराज़ हो जाए तो उसको एक पप्पी, यानी कि उसको पप्पी दे के मना लेना चाहिए। ये अल्फा ने हमसे कहा, मतलब प्यार करके मना लेना चाहिए। ज़ाहिर हर कोई प्यार का भूखा होता है, आप मनाओगे तो वो मान जाएगा। मीठी हमसे कहती हैं, मनाने का तरीका ऑनेस्टली मुझे नहीं पता कैसे मनाऊंगी, बट अब तक जब भी मनाया है, कोशिश की है, अगला इंसान बस मान जाए, फिर जो भी करना पड़े मैं कर लेती हूँ। मुझे जो है वो अपने फ्रेंड्स खोने से डर लगता है। ये इनकी जो है सेंसिटिविटी है, और बहुत अच्छा आपने जवाब दिया इमली बोल रहा हूँ, मीठी इमली भी कुछ इसी तरह का अगर होती तो जवाब देती, वो भी हमारा शो सुनने आती हैं, सुननी है। मिस्टू, जिन्होंने हमें न्यूली ज्वाइन किया है, और इन्होंने कोई पिक्चर बनाई हुई है ब्लैक एंड वाइट किस्म की, और ये कुछ कह रहे हैं। इन्होंने उसमें ब्लिंक आई की हुई है और कह रहे हैं वोटिक्स ड्रोना शो कब कर रहे हैं आप? सर, मैं ड्रोना शो जो है वो कल 1 बजे स्टार्ट करूँगा। आपने बिरयानी की प्लेट, चम्मच और साथ में चिकन वाली बिरयानी, बोटी अपनी पसंद की डलवानी है और लेके आना है, प्लेट में रखना है उसको, हमारे साथ डिनर करना है स्टोरी सुनते हुए, और वहीं बैठ के खाना है। साथ में जो भी आप चाहो, कोल्ड ड्रिंक, पानी, दूध, जो भी पीना है उसके बिरयानी के बाद वो आप पी सकते हो। हस्बे जायका है, हस्बे टेस्ट है। बस बिरयानी में मसाला ज़्यादा नहीं डलवाना, वरना जलन होना शुरू हो जाएगी सीने। कैप्टन अमेरिका कह रहे हैं, आरजे मैं ऐसे ही मनाता हूँ, मजाल है नाराज़गी हो अगेन। अच्छा, बहुत सारे लोग यहाँ बड़े स्मार्ट हैं, वो बताएंगे नहीं कि हमारे अंदर ईगो और गुस्से वाले इश्यूज़ हैं, मगर मैंने फिर भी पर्दा हटा दिया है। मैंने वो सब चीज़ें उनको बता दी हैं जो उनकी शायद लाइफ में मुश्किल है कि उनको पता चल पाता, और वो इसी गलतफहमी में जीते रहते हैं कि मेरा गुस्सा, मेरी ईगो, दे गिव मी नथिंग इन द एंड ऑफ द गेम। अच्छा, रेबल कह रही हैं, आरजे अगर मैं रियल लाइफ की बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी ब्लेस्ड विद द बेस्ट पीपल एवर, वेरी लकी। और अगर नाराज़गी की बात करूं तो नाराज़गी कभी आई नहीं हमारे बीच, एंड कभी ईगो का कोई, बिल्कुल सही है। ये आपका हेल्थी रिलेशनशिप है, बेस्ट ऑफ लक। दोनों जो भी आपके साथ है, जो नाराज़ नहीं हुआ, उसके साथ जाइएगा, फ्रूट चाट खाइएगा, या पकोड़े, समोसे, जो भी खाना हो जलेबी के साथ वो भी खा लीजिएगा, चाय वा पीजिएगा, फैंटास्टिक। तो ये इनका जवाब था। रेहान अली में ज्वाइन कर चुके हैं, आज इन्होंने गुलाब का फूल नहीं दिया, लेकिन हम इनको वेलकम करते हैं, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं उर्दू मज़ल लॉबी पे। और चलेंगे, हमारे पास टाइम जो है वो कम ही रह जाता है, बातों में निकल जाता है, तो हम थोड़ा सा स्किप करके चलते हैं ताकि हम आगे बढ़ते रहें। अगर कोई आरजे आया तो मैं हट जाऊँगा। तो हम चल रहे हैं एक और ट्रैक की तरफ, और ये ट्रैक में थोड़ा सा हमें जैसे लत लग जाती है किसी दोस्त की, किसी रिलेशनशिप की, बिल्कुल ये जो ट्रैक आ रहा है इसी तरह से आपको इस रिश्तों को निभाना है और उसकी लत लगानी है अपने दिल में। और आइए मिलकर सुनते हैं और आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड, कीप लिसनिंग, एंजॉय। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन द रेडियो ऑफ उर्दू मज़ल लॉबी। दिस इज योर होस्ट आरजे वोटेक्स। वेलकम एवरीवन, इंक्लूडिंग माय फैमिली, फ्रेंड्स एंड फैंस। गॉड ब्लेस यू ऑल। बेईमान होता नहीं आसान, इसे है समझाना। बेईमान, दिल बड़ा बेईमान, तेरे लिए शैतान, मेरी ना एक माना। दिल जीते या मैं जीतूं ते
लगता है साल दिल की तुम जरूरत हो, रोकूं जितना उतनी बगावत हो, लगता है साल दिल की तुम जरूरत हो, मुझको भी तू जरूरी, तू भी नशे में पूरी, तो कैसी ये तलब लग गई, मुझे तो तेरी लत लग गई, जमाना का ये लत, ये गलत लग गई, मुझे तो तेरी लत लग गई, जमाना का ये लत, ये गलत लग गई, मुझे तो तेरी लत एक तू एक मैं, एक बात हुई अपनी, है राह क्यों सारा जहां जो रात हुई अपनी, एक तू एक मैं, एक बात हुई अपनी, है राह क्यों सारा जहां जो रात हुई अपनी, मुझसे तू आके मिला तो ये हुआ हंसना के साथ मोहब्बत लग गई, मुझे तो तेरी लत लग गई, जमाना का ये लत। Alright people, the wonderful people of उर्दू मज़ा लॉबी, आपको करते हैं एक बार फिर से वेलकम। सावरिया ने हमें ज्वाइन किया, इनको करते हैं साथ में वेलकम, फिर से वेलकम बैक। हम नवा हमारे साथ आ चुके हैं उर्दू में, इनको करते हैं वेलकम। और आज मेरे घर में अखबार आया था इंग्लिश में जिनका नाम था डॉन, उनको भी करते हैं वेलकम। और ये वो वाला डॉन नहीं है, ये वो वाला डॉन है जिसको देखकर ये लगता है, पढ़ते हुए ये लगता है कि डॉन को पढ़ना इतना आसान नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि उसमें सब कुछ इंग्लिश में लिखा होता है। टॉक्सिकेंट ने हमें ज्वाइन किया है, कह रहे हैं ब्रो पूरा मूड ही स्पॉइल हो गया है और उसको कैसे ठीक किया जाए। ब्रो नहीं होगा ठीक, जिसने मूड स्पॉइल किया है अल्लाह उसको सज़ा दें इंशाल्लाह ज़रूर। देखें, किसी का दिल दुखाना कितना बड़ा गुनाह है। ज़ाहरी तौर पर तो हमें नहीं पता चलता कि हमने किसी का दिल दुखाया, हम तो वहाँ से हंसते खेलते चले जाते हैं, लेकिन वो किस रूप में आगे इन फ्यूचर हमारे साथ वेट करने वाला आने वाला होता है, वो कर्मा जो है वो होता है कि जो आप करोगे वही आपको मिलेगा। पुराने वक्तों में हमने जो है मिस्टर आपको वेलकम करते हैं, सॉरी मैं बताना भूल गया आपको, आप हमें सुनना ही आपकी मोहब्बत है, आपको लत लग गई हमारे शो की, आपका बहुत शुक्रिया। ये सॉन्ग के हवाले से मैंने आपको बताया। टॉपिक ये था कि हम अपने दोस्त जब कोई नाराज़ हो जाए तो उसको कैसे मनाएं। साउंड ने हमें जवाब दिया, थैंक यू सो मच बाजी, आपने हमें जवाब दिया, अभी मैं आपका जवाब पढ़ता हूँ। अच्छा, टॉक्सिकेंट ने का दिल दुखाया और किसी ने उनका दिल दुखाया और वो इस वक्त फुल अपसेट है, उनका मूड कैसे मनाया जाए। तो नेक्स्ट ट्रैक जो है वो लास्ट ट्रैक हमारा होगा, वो हम टॉक्सिकेंट के नाम करते हैं और सब लोग मिलके टॉक्सिकेंट को जो है वो एप्रिसिएशन दें, शाबाशियाँ दें, फूल दें, इनको परफ्यूम गिफ्ट करें, ताकि ये उनका जो दिल है, इनका जो मूड है वो गार्डन हो जाए। और मैं आपको बर्गर बन कबाब भी खिला दूंगा टॉक्सिकेंट, अगर आपका मूड ऑफ है। मुझे नहीं पता किस रीज़न से ऑफ है, वॉट एवर द रीज़न इज़, बट आई एम सीरियसली टेकिंग यू ऑन दिस बिकॉज आप जितने भी लोग हैं जो मुझे सुनते हैं, एवरी पर्सन इज़ सो स्पेशल टू मी व्हेन आई डूइंग अ शो हियर ऑन द रेडियो। और कभी किसी का दिल ना दुखाएं, वो हमारे पास वैसे ही घूम के आ सकता है जैसे हमने उसका दिल किसी भी सूरत में घुमा दिया हो, पर हम उस वक्त तो स्मार्ट बन रहे होंगे, लेकिन आगे जाके हमें नहीं पता वो किस रूप में हमारे सामने क्या सज़ा अल्लाह ताला देने वाला। कहते हैं अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ है, उसकी जो स्टिक है वो बेआवाज़ है, जब वो पड़ती है तो आवाज़ भी नहीं आती, और कब पड़ती है और पता चल जाता है, लग पता कि हमने कभी किसी का शायद दिल दुखाया, हमें याद भी नहीं रहता। तो ऑनेस्ट बात तो ये, तो हम उसको फेस करते हैं। मीठी कहने टॉपिक का ट्विस्ट दें, अलग से पूछें, सावरिया साउंड ने मुझे अच्छा टॉपिक को थोड़ा ट्विस्ट देते हैं, डेगची में थोड़ा पकाते हैं, बिरयानी में थोड़ा तड़का लगाते हैं, मसाले वाली बनाते हैं। सावरिया और आपसे साउंड आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग बताएं कि अगर मीठी आप लोगों से नाराज़ हो गई तो आप लोग इनको कैसे मनाएंगी। आज तक जालिमों ने नहीं मनाया यार, ये इतनी बेचारी सेंसिटिव लड़कियां, आप उनको मनाती नहीं हुई क्या? मैं क्या सुनने में आ रहा है ये सावरिया और ये साउंड, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप लोग इतना अच्छा साउंड करते हो और आप लोगों का साउंड को क्या हो गया? मतलब स्पीकर रिपेयर कराने पड़ेंगे क्या? मसला क्या हुआ? ये मिस्टर कह रहे हैं जितना स्पीड में बोल रहे हैं माइंड ब्लोइंग, थैंक यू सो मच। ये आपकी मोहब्बत है और आप निक चेंज करके आए हैं और आपने जो डीपी भी अच्छी लगाई है, अल्लाह पाक आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। कल्ब ने हमें ज्वाइन किया है, कल्ब कहते हैं इंग्लिश में हार्ट को, दिल को। कल्ब को हम वेलकम करते हैं अपने शो में, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं। ब्लैक एंड वाइट अभी ये बन के आए, बाद में शनाख्ती कार्ड की कॉपी वॉपी जमा करा देंगे ये रिशल राना साहब को।
या इमली को या सांवरिया को, तो इनका भी फ़ोटो लग जाएगी इनकी और ये वापस बैक टू लाइफ आ जाएंगे। वरना ब्लैक एंड वाइट लगती ज़िंदगी, लगता है ना हम हार मान रहे हैं, ज़िंदगी से जी नहीं पा रहे हैं, क्या मसला क्या आ रहा है। अच्छा, साउंड ने इसका जवाब दिया, कह रही है मैं मीठी को कभी नहीं मनाऊंगी बल्कि भंगड़े डालूंगी। मतलब डांडिया, शुक्र है आपने डांडिया खेलने का नहीं बोला, वो काम भी कर लेती। मतलब भंगड़े डालना तो वैसे ही होता है ना, डांडिया खेलना। मेहंदी की रात आई, मेहंदी की रात, तो वो मैं खैर मैंने मेहंदी करवा दी डायरेक्ट, अल्लाह माफ़ करे। तो उसके बाद मतलब किसी की भी हो सकती है। हम तकरीब में गए, मैं खाना फोड़ने के लिए, कबाब पराठा है वहाँ पे, खैर हो गई चटनी के साथ। अच्छा, एग्जैक्टली आरजे करवा देंगे, क्या बात है आपकी। जल्दी नहीं, मेहनत करके खुद हो जाएगा आरजे। ओके, ये बंदे, ऐसे बंदे चाहिए यूज़र में जो पार्टिसिपेट लेना फुल टाइम, फुल रॉकिंग। अच्छा, सांवरिया कह रही है आई वुड अपोलोजाइज टू हर, मैं उनसे माफ़ी मांगूंगी। सेंड ऑल माई लव टू हर, मैं उनको अपना पूरा प्यार भेजूंगी। ट्राई टू मेक अप टू हर सो, मतलब कह रही है ट्राई टू मेक अप टू हर सो इट डजेंट हैपन अगेन। मैं कोशिश करूंगी कि मैं उनका पूरा मेकअप करूं दिलो जान से और वो एक खूबसूरत लड़की लगने लगे, जैसे कि वो है मीठी, लेकिन वो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खूबसूरत लगने लगेंगी और ये चीज़ दोबारा नहीं होगी। ऐसा हमें सांवरिया कह रही है मीठी के बारे में। और कह रही है एंड साउंड, मीठी एंड साउंड आर प्रेशियस टू मी, यानी मीठी और साउंड उनके लिए किसी हीरे से कम नहीं है जो हमेशा चमकती रहती है उनकी लाइफ में। आई वुड अपोलोजाइज टू देम, मैं उनसे माफ़ी मांग लूंगी। दैट इज द इनोसेंट थिंग एंड डिसेंट थिंग विच गिविंग अस बाय सांवरिया। थैंक यू सो मच फॉर taking a answer of my topic and giving us to in very decent way। मिस्टू कह रहे हैं आरजे टॉपिक से हट रहे। यार मैं एक जगह खड़ा कब होता हूँ, मैं तो जले पैर की बिल्ली हूँ, उधर उधर घूमता रहता हूँ, कभी इस टॉपिक पे चले जाता हूँ, कभी इतनी सारी आवाम को संभालूं कैसे। आप मुझे उसका मतलब की पॉइंट बताओ मुझे कुछ। अभी अगर मैंने कोई मिस्टेक की ना, सारा बैंड बजा देंगे मेरा मिलकर। जब टॉक्सिकेंट का मूड क्यों बुरा हो, जब ऑनलाइन आए तो आंसर दें जो पीएम किया आप दोनों को। अच्छा टॉक्सिकेंट, मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगा भाई, रिफ्रेश योर मूड। एंड हमारे पास जब कोई ऐसा बुरा वक्त आता है जिसमें अप एंड डाउन आते हैं लाइफ में, आप सबके लाइफ में आते होंगे, आए होंगे, उस वक्त हमारे पास दो चॉइस होती हैं, एक सैड होना और एक खुश होना। आप चूज़ आपने करना है। अगर आप सैड हो गए और उसको तारी कर लिया अपने ऊपर, तो आप जहनी मरीज बन जाएंगे, आप हेल्थ वाइज स्लो हो जाएंगे, आपका रंग काला पड़ने लगेगा, आपकी आँखों के नीचे हल्के पड़ने लग जाएंगे, आपकी नाक बहना शुरू हो जाएगी, आपको खांसी आना शुरू हो जाएगी, आपको बुखार रहने लगेगा, आप वीक होने लग जाएंगे, आपसे खाना नहीं खाया जाएगा, आपकी भूख मर जाएगी, घर वाले पूछने लग जाएंगे, परेशान हो गए क्या हो गया। तो अगर आपको ऐसी हालत करनी है तो चूज़ सैडनेस। और अगर आप उसके बावजूद भी उसको फेस कर रहे हैं और आप खुश हैं और आप उसको आप फील कर रहे हैं कि हाँ यार मैं इसको संभाल लूँगा या संभाल लूँगी, कुछ भी हो जाए चाहे, तो आप जो है वो उसको जो है वो संभाल सकते हैं और आप जो है वो उसको डील भी कर सकते हैं और खुश भी रह सकते हैं और उसको खुशी खुशी उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हैं। मसला क्या होता है कि जब प्रॉब्लम आती है तो हम उसको बड़ा प्रॉब्लमेटिक बना लेते हैं, हम उसका सॉल्यूशन ढूंढना भूल जाते हैं। अगर हम सिर्फ सॉल्यूशन ढूंढने लग जाएं और प्रॉब्लमेटिक वाली जो सोच है उसको ख़त्म कर दें, तो आपकी ज़िंदगी कुछ नहीं बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, जो लोगों को पता ही नहीं होता। कल्प कह रहे हैं आरजे हम तो ऐसे ही मनाते हैं, गुद्दी पे चपेड़े लगाकर या फिर लतियां मारकर। खैर ये तो एक पार्ट था, आओ हम अब आप सबको हंसाने चलते हैं। थोड़ी सी हमारे पास पोस्ट है जो हमारे लिसनर्स ने भेजी, वो हम आपके लिए पढ़ेंगे और आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। तो एक पोस्ट इसमें से ये आई, बायोलॉजी की टीचर ने बच्चे को एक परिंदे की टांग दिखाई और पूछा ये किस परिंदे की टांग है। बच्चे ने कहा पता नहीं। टीचर ने कहा तुम फेल हो, अपना नाम बताओ। बच्चा, मेरी यहाँ लत्ता वेक देख के 10। यानी बच्चे ने कहा, टीचर ने बताया कि तुम फेल हो और अपना नाम बताओ। तो बच्चे ने, जब टीचर ने नाम पूछा तो बच्चे ने कहा मेरी यहाँ लत्ता वेक के 10, मतलब मेरी टांगें देखकर बताओ कि मेरा नाम क्या है। जैसे टीचर ने उनसे पूछा था कि भाई परिंदा ये टांग किसकी है, तो उसने बोला मेरी टांग देख के मेरा नाम बताओ। तो ये बच्चे ने टीचर से कहा, टॉक्सिक आरजे ब्रो मैंने मजाक में फंड में साउंड के साथ था, किसी ने मेरा निक चेंज कर दिया विदाउट माय परमिशन। किसी को मैनेजमेंट पे प्रॉब्लम है तो मुझे पीएम कर। अरे यार कितनी छोटी छोटी बातें यार, डोंट टेक इट ऑन योर हार्ट मैन। कितने जीनियस हो तुम, स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आते हो मेरे भाई, गोल्ड मेडल मिलता है तुम्हें, क्या ये टेंशन लेके निक चेंज कर दिया, क्या कर दिया, खुद ही कर लो चेंज, उसको खत्म। कोई तंग कर रहा होगा, प्यार आ रहा होगा किसी को तुम पे, अब इसको नेगेटिव थोड़ी लेना है। बस इतना सा सॉल्यूशन था, इतना बड़ा उसको बना दिया, नीचे जमीन से लेके आसमान तक बात चली गई, रॉकेट भेजने पड़ेंगे ऊपर आसमान पे। टेंशन नहीं लेने का यार, अपना निक चेंज करो, टॉक्सिकेंट में वापस आ जाओ, सिंपल इज दैट। एम्बर ने हमें ज्वाइन किया है, एम्बर को वेलकम करते हैं और उनके लिए गाना गाते हैं। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, तो ये उनको वेलकम करते हैं उर्दू लॉबी पे। ये एक स्टाइल था जो उनके लिए शॉर्ट में गाना गा दिया। अच्छा भाई चलते हैं नेक्स्ट की तरफ।
सर्दी से बचने के लिए एक दूसरे से जलते रहना, आज की ताज़ा खबर। शुक्रिया। उसके बाद मतलब ये बताया जा रहा है कि सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दी से बचने के लिए एक दूसरे से जलते रहना, ताकि जब जलते रहोगे तो आप लोग गर्म रहोगे। डोंट टेक इट सीरियस, हाँ, ये सिर्फ जोक है। मेहरबानी करके खाना खाते वक्त मेरी पोस्ट पे ना आया करो। कल भी किसी ने अचार वाले हाथ लगा दिए थे। फिर आगे चलते हैं तो वहां कोई बंदा कह रहा होता है, जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं। जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं, गार्डन को बाग कहते हैं, जो आपके पास नहीं है हम उसे दिमाग कहते हैं। नवाजिश, शुक्रिया। अगर जन्नत में हूर चाहिए, आगे जाके दिस लाइन इज फॉर ऑल टर्कीज, अगर जन्नत में हूर चाहिए हो तो महल्ले वाली महानूर का पीछा छोड़ दो। कैसा? अच्छा, टॉक्सिकन कह रहे आरजे ब्रो, नो जैस ने किया अच्छा नहीं किया, जिसने किया अच्छा। अरे यार, फिर वही आप सीरियस यार। मैं आपको, आप मेरी तरफ देखो ना, अंडे वाला बर्गर हम खाएंगे ना साथ बैठ के, आप छोड़ दो ना उसको। मैं चटनी ज़्यादा डलवाऊंगा, केचप कम डलवा लूंगा, आप ज़्यादा डलवा लेना। टेंशन थोड़ी, इससे पूरा बर्गर खराब थोड़ी होगा, आराम से खाएंगे बैठ के, पेट भर जाएगा। आप मेरी तरफ ध्यान दो यार, छोड़ो ये सब चीज़ें, छोटी मोटी बातें। हम लोग इतनी इतनी बातों में लड़ते हैं, कोई बड़ा प्रॉब्लम। मैं समझा यूएमएल में डिडोस पड़ गया तो टॉक्सिकेंट परेशान है, तो मुझे समझ आया कि भाई वो तो सही चल रहा है, टॉक्सिकेंट तो इसलिए परेशान है, उसका निक जेनिफर से किसी ने पिटबुल रख दिया था। अरे टेंशन नहीं है, आप रहोगे टॉक्सिकेंट ही। कोई कुत्ता बोले, बिल्ली बोले, डायनासोर बोले, एलिफेंट बोले, आंख खोल के देखना, आईने में जाकर चेक करना, आप टॉक्सिकेंट ही रहने वाले। इतना सा फंडा है और आप उसको संडे बना रहे हो अपने लिए। खैर, चलते हैं अब एक और ट्रैक की तरफ, जो कि लास्ट है। और आरजे तो कोई आया नहीं है इस वक्त, और मैं देखना चाहूँगा स्केजुअल एक बार फिर से, और आज उसको रिपीट करेंगे थोड़ा सा। एक न्यू लेटेस्ट न्यूज़ आई है, यहाँ पे फ्राइडे पार्टी है आरजे लोन राइडर के साथ urdumatlobby.com पे। 3 बजे आप सब ने आना है, और ये भूतों का डीजे है जो ये करने जा रहे हैं, और उसमें ये लोग वैम्पायरिक साउंड या म्यूजिक प्ले करेंगे, जो आप लोगों को आपकी रात को कर देगा सुहाना, और मच्छर आपसे दूर रहने पर मजबूर। अच्छा जी, इसके साथ जो है वो एक नया स्केजुअल आया था जो फ्राइडे नाइट का था। ईशा अली का शो था 8 बजे, जो कि सबने मिस कर दिया होगा या सुना होगा, आई डोंट नो। आरजे जगाल का उसके बाद 10 बजे सुबह का शो था। दोनों के मॉर्निंग शोज थे, ईशा अली और जगाल के। दोनों ने आप लोगों के साथ चाय, बिस्किट, पापे, अंडा, डबल रोटी सब खाया यहाँ बैठ के, विद मेयोनीज और बटर, डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट। इसके साथ टेस्ट बड्स। डीजे इंटरनेट सोल ने अपना डीजे से आप लोगों को जादू जगाया 12 बजे दोपहर में बिरयानी के साथ। फिर उसके बाद आ गया जख्मी दिल लंच करने के बाद 3 बजे। इसके बाद आरजे फरहान खान ने हमें ज्वाइन किया 4 बजे शाम की चाय और समोसे के साथ। इसके साथ उसके बाद डीजे सितारा बहना आई, जिन्होंने समोसे और चाय हमारे साथ लिया और खाना खाया। आरजे जॉम्बी ने रात के 9 बजे निहारी बनाई और यहाँ पे शो किया। आरजे फर्रुख, जो कि अभी न्यूली इस रूम में ज्वाइन हुए थे, बबलू गपलू जिनको मैं प्यार से बुलाता हूँ, वो भी आके आरजे बन गए हैं। दैट इज़ द वेरी गुड थिंग। 11 बजे आरजे हरीम ने शो किया डिनर के साथ। आरजे रिशेल साहब का 12 बजे शो था। 1 बजे मेरा शो है, और उसके बाद लास्ट में बचे हम नवा। हम नवा मेरे तू है तो मेरी सांसें चले, बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना। ओ, ये हम नवा जो है वो रेडी हैं। अब वो हैं, आएंगे, मुझे बोलेंगे तो मैं डीसी कर जाऊंगा, टेंशन नहीं। तो ये था सीन, और लेट्स सी। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर एक और ट्रैक ले लूँ आप लोगों के लिए, और आप लोगों को वो सुनाया जाए, थोड़ा सा सूदिंग, थोड़ा सा रोमांटिक। थोड़ा बातें तो बहुत ज़्यादा हो गई हैं, चल ही रही हैं, और टॉपिक पे सबका पार्टिसिपेट लेने का बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। लेकिन अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा रोमांटिक एक मैशअप की तरफ, जो आप लोगों का वेट कर रहा है। आइए मिलकर सुनते हैं और एंजॉय करते हैं, और आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड, कीप लिसनिंग एंड हैव अ ब्रेक, हैव अ किट कैट ऑन द शो ऑफ आरजे वोटेक्स। आते हैं एक छोटे से ट्रैक के बाद, जो कि बहुत बड़ा है। तू आसमां मैं दाग हूँ तू चांद सा, मंडन के मुटियारा आया बटोला बनके। तू बारिश है मेरे धूम में धुन कोई तू राग सा, कन्ना दे विच पिपल पत्तियां। ओह, समय समाप्ति की घोषणा, और हमारा टाइम हो गया अब, और बजर बजा दिया है सांवरिया ने, और हम नवा अपने शो का वेट कर रहे हैं। हम नवा, रियली सॉरी यार, गुड लक फॉर योर डीजे, एंड आई हैव टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम हियर। एंड लास्ट मेरे पास एक पीएम था, साउंड ने जो हमें भेजा था, वो कहती हैं, आई थिंक कोई भी रिलेशन हो, अगर आपने झुकना नहीं सीखा तो आपने अपनी लाइफ में कभी खुश नहीं रह सकते। और मैं अपने फ्रेंड्स को हर हाल में मना लेती हूँ, चाहे उसमें मेरी गलती हो या ना हो। दैट इज़ द थिंग, दैट इज़ द केयर ऑफ द ट्रू रिलेशनशिप। थैंक यू सो मच साउंड एंड एवरीवन फॉर टेकिंग अ पार्टिसिपेट इन द टॉपिक एंड शेयरिंग योर थॉट्स एंड ओपिनियंस विद अस इन दिस उर्दू मज़ल लॉबीज़ रेडियो। मुझे
कहते हैं आरजे वोटेक्स, मुझे दीजिए इजाज़त और आप सबको कहते हैं मेरा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय। अपने चाहने वालों को अपने आप से ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। एंड गुड लक कहते हैं हम नवा को फॉर उनके डीजे के लिए और आफ्टर दैट लोन राइडर। इसी तरह यूएमएल का कैरावन चलता रहेगा। ज्वाइन कीजिए, अपने टाइम को एंजॉय कीजिए और यहाँ पर आने का आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय। साइनिंग आउट फ्रॉम द रेडियो। To my favorite place, I gotta get my body moving, shake the stress away. I wasn't looking for nobody when you looked my way. Possible candidate, yeah. Who knew that you'd be up in here looking like you do? You're making staying over here impossible. Baby, I must say your aura is incredible. If you don't have to go, don't. Do you know what you started? I just came here to party, but now we're rocking on the dance floor, acting naughty. Your hands around my waist, just let the music play. We're hand in hand, chest to chest, and now we're face to face. I wanna take you away, let's escape into the music. DJ, let it play. I just can't refuse it, like the way you do this. Keep on rocking to it. Please don't stop it, please don't stop it, please don't stop it. The music, baby, are you ready? 'Cause it's getting close. Don't you feel the passion ready to explode? What goes on between us, no one has to know. This is a private show. Do you know what you started? I just came here to party, but now we're rocking on the dance floor, acting naughty. Your hands around my waist, just let the music play. We're hand in hand, chest to chest, and now we're face to face. I wanna take you away, let's escape into the music. DJ, let it play. I just can't refuse it, like the way you do this. Keep on rocking to it. Please don't stop it, please don't stop it, please don't stop it. Mama say, 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 mama say. Please don't stop the music.